Let we start the workshop from 4th of lesson number 1.5. We have already completed the 1.3 workshop on the dated 12 October. Then we have to start from 4th now. Read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate words given in brackets. Here some words are given in your brackets: afraid, plunged, appeared, shrilly, schemed, devoured, and cowardice. You have to choose the words from this bracket and write at the proper place in the sentences. First sentence is Arun is full of. Which word is suitable here? Cowardice. Arun is full of cowardice. Cowardice. Next sentence. The violin played very and merrily. Very adjective word here given you adjective word and sentence is full now. You may easily consider that here will be written the adverb only. The violin played very shrilly and merrily. Are you really of the dark? Are you really afraid of the dark? Fill here the word afraid. The whole village into darkness. पूरा गांव अंधेरे में plunged डूब गया. The whole village plunged into darkness. The lions their prey hungrily. भूखा शिकार था उसने अपना भूखा शेर था उसने अपने शिकार को devoured means निगल डाला. gobbled up greedily. Next one, he through the report. He skimmed through the report. G, one by one the stars appeared in the sky. Activity 4. Now pay attention at the question number 5. Read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. सुनीता विलियम्स का जो स्पेस मिशन था अंतरिक्ष अभियान उसके बारे में पढ़ो. इमेजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हर. कल्पना करो कि तुम उनका साक्षात्कार लेने के लिए जा रहे हो. फ्रेम 10 to 12 क्वेश्चंस. इंटरव्यू रिलेवेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग. उससे संबंधित 10 से 12 प्रश्न आप तैयार करो. हियर आर सम पॉइंट्स. हिंट्स आर गिवन फॉर फ्रेमिंग योर क्वेश्चंस. फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस राइटिंग स्किल में आपको आता है. फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस शुड बी द WH टाइप्स. यू हैव to ask the question related her early life, her training, her education, her actual flight into space, her future plan and her message to viewers. So you have to give the title before writing the interview question. Give the title like interview questions to Sunita Williams. Give the title interview questions to Sunita Williams. Then you have to address the interviewee before asking the question. Like suppose you are the interviewer and Sunita Williams is sitting before you. Then you should start like this. Hello madam. Congratulations on your great achievements in the space mission. Hello madam,
Congratulations on your great achievements in the space mission. Please allow me to ask you a few questions about your career and your mission. You have to start like this. Then frame the 10 or 12 questions. Questions should be like this. For example, could you please tell me about your birthplace, family and early education? Could you please tell me about your birthplace, family and early education? This is the question first. Next, you may ask the second question. What motivated you to do MSc in Engineering Management? What motivated you to do MSc in Engineering Management? Where did you do it? From where do you did it? कहाँ से आपने इसे किया? From where did you do it? कौन सी बात ने आपको इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएससी करने के लिए प्रेरित किया और इसे आपने कहाँ से किया? क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज ए नावल एविएटर इन 1989? नावल एविएटर के रूप में, नावल एविएटर मीन्स नेवी का जो जहाज़ होता है, उसमें नेवी के जहाज़ को चालक के रूप में 1989 में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इसके रूप में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा, पूछ सकते हो। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज ए नावल एविएटर इन 1989? व्हेन एंड वेयर डिड यू बिगिन योर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग? एसीटी ट्रेनिंग होता है, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग। तो व्हेन एंड वेयर डिड यू बिगिन योर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेयर यू सेलेक्टेड बाय नासा फॉर एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम? कब चुना गया? व्हेन वेयर यू सेलेक्टेड बाय नासा? नासा के लिए आपका चुनाव कब किया गया? फॉर एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। फिर विल यू प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एट नासा? Thus you may ask the many questions. I will send you at least 4 to 15 questions, and I will also send you the common questions which are asked in any interview. It will be very useful for you. I have some questions which are asked in every इंटरव्यू कॉमनली। सामान्य रूप से किसी भी साक्षात्कार में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि आपको पूरे क्वेश्चंस बैठ नहीं रहे हों तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, गो अहेड। डिस्क्राइब इन योर नोटबुक द चैलेंजेस यू फेस्ड while learning to ride a bicycle, swimming or any skill। किसी भी स्किल को सीखने के लिए या साइकिल चलाना, तैराकी सीखना, इन सब को सीखते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका वर्णन अपने अभ्यास पुस्तिका में करो। टेक हिंट्स फ्रॉम द वेब टू कंप्लीट योर राइटअप। अपने लेख को पूर्ण करने के लिए आप इस वेब का जाल चित्र की सहायता ले सकते हैं। Learning by skill, here the given the skill learning by skill। साइकिल सीखना। चैलेंजेस, कौन सी चुनौतियाँ आती हैं इस रास्ते में? व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस टू राइड ऑन बाइसिकल? फर्स्ट वन कॉन्फिडेंस, सेकेंड वन रिस्क, थर्ड वन डेयरिंग, फोर्थ वन फियर। Here are some challenges given in this web. You may take the help of this web and continue your write up। अपने लेख को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो give the heading of your write up learning bicycle। Here is written learning bicycle या riding bicycle।
लिख सकते हो। फिर आंसर में इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको राइट अप शुरू करना है। थ्रू सम पीपल थिंक दो सम पीपल थिंक दैट राइडिंग ए बाइसिकल इज़ वेरी सिंपल ईजी थिंग, but it is not true. It is challenging job. It is challenging job. When you begin to learn cycling, you must have to drive away and win over the fear or falling. Fear of falling, गिरने का डर जो होता है कि हम साइकिल सीखना शुरू करेंगे तो हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो सकता है, एट्सेट्रा। तो ये पहला चैलेंज है। व्हेन यू बिगिन टू लर्न साइकिल यू मस्ट हैव टू ड्राइव अवे एंड विन ओवर द फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने के डर पर आपको विजय हासिल करनी होगी। फिर व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल यू आर टू फॉल वंस और ट्वाइस और मोर एंड मे गेट इंजर्ड, ओके, सो यू मस्ट बी बोल्ड एंड फॉरगेट योर फियर ऑफ फॉलिंग। Secondly, as a beginner, don't fully depend on a trainer or a supporter, otherwise you will never learn cycling. पूरी तरह से आप अपने लर्नर और ट्रेनर पर डिपेंड नहीं होगे, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। You should ride on your own with a determination. You must be steady, stable and patient. You will have to look straight ahead of you and not to the handle or pedal or anywhere else. Sit properly on the seat and hold the handle firmly. Then balancing is the next task challenge. साइकिल पर संतुलन बनाना, बैलेंस करना अगला चैलेंज होता है। Be alert and ride the cycle carefully. Pay attention to the vehicle coming in your way and you should be able to avoid them or there will be a possibility of an accident. Your concentration must be only on riding. Remember the traffic rules and follow them. After practicing a lot, you will ride a bicycle confidently. Okay? Then you have to write this write up also. Project work are given here. Collect the career options related with flying. फ्लाइंग से रिलेटेड, उड्डयन से संबंधित कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, कैरियर ऑप्शन आप उसको कलेक्ट करो। जैसे पायलट वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो फ्लाइंग से संबंधित है। तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं फ्लाइंग से संबंधित, तो उसको आपको लिखना है। फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट वेयर ट्रेनिंग ऑफ योर ऑप्शन इज़ गिवन। और जो ऑप्शन आपने लिखा है उसका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होता है, इंटरनेट पर जा कर के ढूंढिए और उसको लिखिए प्रोजेक्ट वर्क है। फाइंड आउट द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कितने समय का प्रशिक्षण होता है, इसकी फ़ीस क्या है, एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ इट, और इसकी भावी संभावनाएं क्या हैं। ये करने के बाद भविष्य में कितने जल्दी सर्विस मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है, ये सब आपको बताने हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट है कलेक्ट और ड्रा डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास में विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनके चित्र बनाओ। कलेक्ट या कहीं पर छपा हुआ है तो उसको एकत्रित करो। कलेक्ट और ड्रा डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स और राइट अबाउट देम, उनके बारे में लिखो। मेक ए चार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच, और प्रत्येक के बारे में एक चार्ट बनाओ और उसके बारे में जानकारी दो। तो ये सेकंड प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आप बनाओ या उनका चित्र छांटो, लिखो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करो। पिक्चर चिपकाने के बाद इंफॉर्मेशन एकत्रित करो, लिखो, या तो खुद चार्ट बनाओ, चार्ट में उन पक्षियों के चित्र बना करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। ओके, दिस इज गिवन टू यू। 5. There are words that have the same pronunciation but differ in spellings.
इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स, बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा में होते हैं, दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है, बट डिफर इन स्पेलिंग, लेकिन उसकी स्पेलिंग वर्तनी अलग होती है। दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल फेयर, फेयर, द प्रोनाउंसिएशन is the same na, but the spelling is differ of both fair. First one is fair, second one is fare. Fair, there are different meaning in Hindi. Fair, sundar, fair, अच्छा, fair, gora. There are different meanings in Hindi of this word, but fare, fare means traveling allowance, किराया, भाड़ा। तो the pronunciation is same, but the spelling and meaning are differ. तो in the homophones, the pronunciation of both the words are same, but they are differ in spelling and meaning. Okay? No, K-N-O-W, no. It is a verb, means जानना in Hindi. No, it is the negligation, nahi. Sometimes the words have the same spelling and pronunciation, but can have different meanings in different situations. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, बट उनकी मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है, तो वो होमोग्राफ्स कहे जाते हैं। दे आर कॉल्ड द होमोग्राफ्स। In homographs, the words have the same spelling and pronunciation, only meaning is different. But in homophones, only pronunciation is same, they are different in meaning and spelling. So you have to completely and perfectly, exactly know the difference between homophones and homographs. Homophones are the word which are same in pronunciation only, but they are different in spelling and meaning. In homographs, the spelling and pronunciation is the same, they are different only in meaning. Okay? So learn the carefully. Here are some examples given. They are called homographs, in which the words have the same spelling and pronunciation, but the different meaning in different situations. Example, watch and watch. Watch means observe, it is a verb, and watch shows the time. Watch shows the time, it is a noun. घड़ी, watch means घड़ी, watch means देखना, हाँ। तो the pronunciation and meaning is same, both the watch, W-A-T-C-H, but they are different in only meaning. They are these words are homographs. Okay, let's go ahead. Be fair, fair, not very good, not very bad, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, fair means अच्छा. Fair, an exhibition and sale of items. मेला, F-A-I-R, fair means मेला. Next, the meaning of fair, complexion of skin, tone. गोरा, चेहरे का complexion, रूप रंग. तो here are given three meanings of fair.
Note, homophones and homographs are together known as homonyms. Both are the kinds of homonyms. Homophones and homographs are the form of homonyms. होमोनाइम्स का प्रकार है, दोनों को मिलाकर इसको क्या कहा जाता है? होमोनाइम्स। होमोनाइम्स में क्या आते हैं? होमोफोन्स एंड होमोग्राफ। इन द फॉर्म ऑफ होमोग्राफ ओनली प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट दे आर डिफरेंट इन spelling and meaning. But in homographs the spelling and pronunciation is same, they are different in only meaning. Have you understood? Let's go ahead. Give the homophones of the following: blue, blue, blew, blue. होमोफोन्स देना है, केवल प्रोनाउंसिएशन सेम होगा तो ब्लू, BLEW, मीनिंग एंड स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट. बियर, BEAR, बियर, BEER, बियर. बीट, BEET और BEAT. TO2, TWO2, TOO2, हाँ बहुत सारे हैं. सन, SON, SUN. So now you have completed the homophones. Find from the lesson the homophones of the following. इनके homophones आपको लेसन से ढूंढने हैं. Pick the homophones from the text. C, SEE, C, SEA. The word has come in your lesson. SEA. Second word wood, WOOD, WOULD, wood, WOULD. Next, there, 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 THEIR. Seen, SCENE, SEEN, seen. Won, ON, WON, I am. Piece, PACE, PIEC, टुकड़ा, खंड, टुकड़ा. थ्रू, THREW, थ्रू, THROUGH, थ्रो, THROUGH. Hence, HENC, hence, HENS. Not, KNOT, not, NOT, not. Okay. Homophones are completed. B, explain how the underlined homographs differ in meaning. You have to say the difference between both the homographs. In the sentence, he saw his two brothers. In this sentence, saw is the second form of the verb see. In this sentence, saw is the past form of the verb see. In the next sentence, the woodcutter cut the weak branches of his sharp saw. Saw, a tool which is used to cut the woods. RE, saw, a tools for cutting the woods. You may write here. In the next sentence, the bird injured his wings. Wings means feathers of the bird. He lives in the sea wings of the building. The wings, here the buildings number. A wing, B wing, C wing. Wings means the same building
द नेक्स्ट बिल्डिंग ऑफ द सेम साइज, सेम डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन की और एक ही तरह की बिल्डिंग जो है कई है तो वहाँ पर ABC नाम दिया जाता है, टू आइडेंटिफाई। थर्ड सेंटेंस, द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM sharp, लैंड टू कम डाउन एट द एयरपोर्ट। He own 10 acres of land. Land means pieces of earth, हाँ, या स्टेट, ESTAT। लैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा होता है, हाँ। He owns 100 acres of land. Land means farms or pieces of earth. The head of the institution was on leave. Head मतलब the chief person of the institution. He bent his head down with chin. तो here head is the parts of body, हाँ। Thus you have explain how the underlined homograph differ. Thus both the words are differing meaning, हाँ। These are the homographs. Next one, read the following sentences carefully, underline the verb and find out the tenses in that sentence. Read the following sentence carefully, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। Underline the verbs, वर्ब को अंडरलाइन करो एंड फाइंड आउट द टेंसेज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो आपको बताना है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, वाज असेंडिंग, दोनों को अंडरलाइन करो। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, जो भी लिखना लिख सकते हैं। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, टूक, दे टूक और नोटिस, नो को अंडरलाइन छोड़ दो बीच में, टूक नोटिस, सिंपल पास्ट। द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक इज टेकन हियर। सी इज स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, इज स्टैंडिंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही लीन्ड आउट इगरली, लीन्ड आउट, लीन्ड, second form is past infinite, simple past. He just felt dizzy, felt, simple past. Okay, an adverb is a word that tells us something more about a verb, and adjective or another word, adverb एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण अथवा दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में हमें कुछ अधिक जानकारी देता है। एडवर्ब का डेफिनेशन है ये। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आल्सो, हाँ, मॉडिफाई करता है इसका। अबाउट ए वर्ब के रूप में देखो, ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज़ ना, फास्ट। तो फास्ट इज एडवर्ब हियर एंड मॉडिफाइज द वर्ब रन्स, रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। द गर्ल sang स्वीटली, हाउ द गर्ल sang स्वीटली, कैसा गाया? मधुर गाया। तो स्वीटली इज मॉडिफाइंग द sang। सडनली द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, द सडनली वर्ड मॉडिफाइंग द क्राइंग, अचानक रोना शुरू किया। तो दीज वर्ड्स मॉडिफाइंग द नाउन, verb, modifying the noun verb. About an adjective, the chain is very sturdy. About an adjective, adjective को कैसे modify कर रहा है? The chain is very sturdy, चेन बहुत मजबूत थी। मजबूत थी, मजबूत होना एडजेक्टिव है, बहुत मजबूत थी। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई, कितना मजबूत थी? बहुत। तो वेरी यहाँ पर स्टडी को मॉडिफाई करा था। टी इज़ टू हॉट, चाय बहुत गर्म थी।
हॉट को मॉडिफाई कर रहा है ना, कितना गर्म थी, कम गर्म थी, ज़्यादा गर्म थी, समझ में आया कि नहीं। तो टू हॉट। अबाउट अनदर एडवर्ब के बारे में कैसा है, यू शुड रन वेरी फास्ट। अब यहाँ पर यू शुड रन फास्ट, तुम्हें भागना चाहिए, कैसा, तेज गति से। तो तेज गति किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की। रन तुम्हें कैसे भागना चाहिए, तो फास्ट क्या हो गया, नहीं सॉरी, हाँ फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। अब कैसे तेज भागना चाहिए, बहुत तेज भागना चाहिए। यहाँ वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब आल्सो मॉडिफाइंग इटसेल्फ, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, समझ आया। तुम्हें भागना चाहिए, भागना क्रिया है, कैसे भागना चाहिए, तेज भागना चाहिए, तो तेज क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया। बहुत तेज भागना चाहिए, वो तेज को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। तो अबाउट ए फ्रेज और सेंटेंस, फ्रेज और सेंटेंस में पहले भी आता है, वो आपको बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज इनकरेक्ट, दुर्भाग्य से तुम्हारा उत्तर गलत है। क्या है, गलत है, उत्तर गलत है, कैसे, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली। ये फ्रेज पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, स्टार्टिंग में आया ना, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। जब कोई भी एडवर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो पूरा सेंटेंस मॉडिफाई होता है उससे। एडवर्ब गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट, एडवर्ब्स क्या क्या हमको जानकारी देता है, प्लेस के बारे में जानकारी करता है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, हाँ बाहर भीतर, ये सब प्लेस की ओर संकेत करता है। फिर दूसरा टाइम को भी मॉडिफाई करता है, आज, कल, परसों, सुबह, शाम, अभी, तुरंत, बाद में। हाँ, आई नीड ए पेंसिल नाउ, मुझे पेंसिल की अब भी ज़रूरत है, तो नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, मैं अपना गृह कार्य करूँगा, कब करूँगा, टुमारो करूँगा, कल। तो ये समय की ओर संकेत करने वाले एडवर्ब है। क्रिया कब होगी, कल होगी, क्रिया होगी कब होगी, कल होगी, अभी होगी, सुबह होगी, शाम को होगी, 1 घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी, ये सब बताएंगे कि एडवर्ब है टाइम सूचक। मैनर, ढंग बताता है, कोई भी काम, कोई भी क्रिया कैसे होती है, क्रिया कहाँ होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। क्रिया कब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कहाँ होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कैसे होती है, एडवर्ब टाइम ऑफ मैनर। अब कितना होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री बताते हैं किस लेवल तक। मैनर में बता, मैनर आर द वे समथिंग इज डन, फॉर एग्जाम्पल रेडी स्लोली, रीड स्लोली, धीरे पढ़ो, कैसे पढ़ो, रीड केयरफुली, रीड लाउडली, रीड स्लोली, रीड सेक्रेटली, दीज आर द मैनर्स। राइट वेल, अच्छे से लिखो, राइट नीटली, डोंट राइट सेवियसली, समझ में आया कि नहीं, किस ढंग से लिखो पढ़ो, करो काम किस ढंग से करो, ये बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर डिग्री, फॉर एग्जांपल द वाटर इज़ टू कूल, पानी बहुत ठंडा है, एज कूल एज आइस, इतना ठंडा है जितना कि बर्फ़, समझ में आया कि नहीं, ये डिग्री है। मैनी एडवर्ब्स एंड विथ एल वाई, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो एल वाई से समाप्त होते, ज़्यादातर वैसे होते हैं। सच एज स्लोली, एक्चुअली, सरप्राइजिंगली एट्सेट्रा। लाइक एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की तरह भी होते हैं। एडवर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्स। एडजेक्टिव की डिग्री होती ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ऐसे ही एडवर्ब भी यूज होता है। ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिवली, वो मोस्ट इम्प्रेसिवली बोला, वो इम्प्रेसिवली बोला, कैसे बोला, इम्प्रेसिवली, एडवर्ब हो गया। मोस्ट इम्प्रेसिवली, सबसे इम्प्रेसिवली बोला, तो डिग्री हो गया। दे डांस्ड मोर ग्रेसफुली, और भी शानदार डांस किया, और भी शानदार मीन्स उससे ज़्यादा, ये सब डिग्री में है।
तो नाउ यू हैव स्टडीड द एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब्स। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपने पढ़ा, कैसे वो यूज़ होते हैं वो देखा आपने। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं एडवर्ब, क्रिया की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की स्वयं, तीनों की विशेषता बताते हैं। ज़्यादातर एल वाई वर्ड से शुरू होते हैं, बट हमेशा एल वाई वर्ड से शुरू होंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। एडजेक्टिव की तरह भी शुरू हो सकते हैं। इनका फंक्शन दिया है कि किसकी ओर संकेत करते हैं, क्रिया के कहाँ हो रही है, उधर संकेत करने वाला शब्द एडवर्ब टाइम ऑफ प्लेस होता है। कब हो रही है, एडवर्ब टाइम ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर कितने लेवल पर हो रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसको समझना है, समझ लीजिए। पैसिव फॉर्म दिया है, मेनी एक्शंस इन्वॉल्व टू पीपल थिंग्स। मेनी एक्शंस इन्वॉल्व टू पीपल थिंग्स, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। वन दैट परफॉर्म्स द एक्शन, एक ऐसे होते हैं जो परफॉर्म एक्शन को कर रहा होता है, एंड वन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन, और एक वो होता है जो एक्शन से प्रभावित हो रहा होता है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा होता है। एक तो कर रहा होता है, दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ रहा होता है। जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स पर प्रभाव पड़ रहा है। दो लोग इन्वॉल्व हैं ना, एक टीचर पढ़ाने वाला है, एक पढ़ने वाला है, समझ में आया? तो वन दैट परफॉर्म द एक्शन दैट इज आई, दैट इज मी, एंड वन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन दैट आर यू ना। एग्जाम्पल, सोनाली एट द मैंगो, सोनाली ने मैंगो खाया। दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई, सोनाली और मैंगो। सोनाली ने जो काम किया, एक्शन किया, और उसका असर किस पर पड़ गया, मैंगो पर, बेचारा ख़त्म हो गया। हाँ, तो इस तरह से हियर द एक्शन ऑफ ईटिंग इन्वॉल्व सोनाली, ईटिंग के एक्शन में सोनाली इन्वॉल्व है, हु ईट्स जो खाती है, एंड द मैंगो विच गेट ईटन, और आम जो खाया जाता है। तो सोनाली इज़ द सब्जेक्ट एंड मैंगो इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईट। ईट क्रिया का सब्जेक्ट है सोनाली और ऑब्जेक्ट है मैंगो। व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट टू परफॉर्म्ड द एक्शन, जब आप ये बताते हैं हु परफॉर्म द एक्शन, काम किसने किया, द एक्शन, तो फिर द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ द सब्जेक्ट, तो जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है। हाँ, उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है, और सेंटेंस इज रिटेन टू टेक द सब्जेक्ट एज ए मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट मेन पार्ट में रख करके सेंटेंस बनाया जाता है। समटाइम्स यू वांट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, कभी कभी आप ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहते हो, उसका डूअर कौन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। द थिंग्स अफेक्टेड बाय द एक्शन, वो चीज़ जो एक्शन से अफेक्ट हो रही है। देन यू मेक इट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, तब आप उसे सब्जेक्ट बनाते हो जो अफेक्ट हो रहा है। समझ में आ जाए, द मैंगो वाज ईटेन, मैंगो खाया गया। हाँ, किसने खाया उसका पता नहीं, वो गाउंड है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, बताना ज़रूरी नहीं है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको नहीं लिखा। किया क्या गया, एक्शन इम्पॉर्टेंट था, या किस पर घटना घटित हुई वो इम्पॉर्टेंट था। हु गेट अफेक्टेड, कौन प्रभावित हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया गया। तो यू में आर मे नॉट मेंशन द डूअर, इसमें आप डूअर का मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हियर सोनाली आर द पर्सन हु एट इट, यहाँ पर वो सोनाली व्यक्ति है जिसने उसे खाया है। दिस इज़ पैसिव कंस्ट्रक्शन और पैसिव वॉइस, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन द थिंग्स अफेक्टेड बाय द वर्ब इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस में द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, द थिंग्स अफेक्टेड बाय द वर्ब, वो चीज़ जो क्रिया से अफेक्ट हो रही है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो चीज़ सब्जेक्ट होती है। द वर्ब इज इन द पैसिव फॉर्म, और इसमें क्रिया पैसिव फॉर्म में होती है, इनएक्टिव होती है, क्रिया काम नहीं करती। क्रिया कैसी होती है, पैसिव, अर्थात जिसको सब्जेक्ट में लिया वो काम नहीं कर रहा है, जिस पर घटना घटित हो रही है या क्रिया से जो प्रभावित हो रहा है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है।
तो ऐसी रचना में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है। आपको मालूम है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द पैसिव वॉइस। इन द पैसिव वॉइस फॉर्म वी हैव टू डू द 3 थिंग्स, particular rules: make the object of the sentence into subject, convert the object of the sentence into subject into object. When it is important, when the subject is not important, it is unimportant, then you have to not write the by plus object. And compulsory use the helping verb from be क्रिया का helping verb यूज़ करो. Then change the verb into third form. Change the main verb into third form in the passive construction. In the passive construction, main verb always comes in its past participle form, third form. Okay? Let's go ahead. The verb is in the passive form, be plus past participle, and the doer of the action may or may not be mentioned. लिखा भी जा सकता है और नहीं भी मेंशन किया जा सकता. In the following examples of passive voice, the doer of the action is not mentioned. इसमें doer of the action mention नहीं है. देखो एग्जाम्पल दिया है, the plants are pruned. The plants are pruned. पौधों को प्रून्ड किया गया, नोचा गया. बाय द वर्कर्स, बाय द गार्डनर्स, कुछ लिखा नहीं गया. किसने प्रून्ड किया वो गायब है. काम क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट कौन था, उसके हिसाब से सेंटेंस लिखा गया है. तो इन दिस सेंटेंस प्लांट्स, द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, प्रून्ड, not the doer. A cup of tea is offered to any guest. A cup of tea is offered to any guest. किसी भी मेहमान को चाय दिया गया, ऑफर्ड किया गया, कोई भी गेस्ट था. Many anecdotes related to Mark Twain are told. If we wish to mention the doer in passive sentences, we mention it by adding by before it. अगर हमको डूअर ऑफ द एक्शन को लिखना है तो हमको बाई लिख करके फिर लिखना रहेगा, उसके पहले बाई लगाना पड़ेगा. एग्जाम्पल, द पेन वॉज गिवन टू मी बाई माई आंट. द पेन वॉज गिवन टू मी बाई माई आंट. कलम मुझे मेरे चाची के द्वारा दिया गया. किसने दिया वो इम्पॉर्टेंट है, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ. मालूम है तुमको, बताने की ज़रूरत नहीं है. द पेन वॉज गिवन टू मी, या आई वॉज गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन ए पेन बाय माई आंट. तो नोट दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज इन द पैसिव वॉइस. ध्यान दीजिए कि क्रिया का पैसिव वॉइस तभी, सेंटेंस का पैसिव वॉइस तभी बदला जा सकता है जब क्रिया ट्रांजिटिव हो, सकर्मक हो. यदि क्रिया का ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस को हम पैसिव कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट या इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. ओके. 5 completely. Study all the chapters carefully and with great efforts. I have tried my best to make you understand all the things, lessons, chapters, meanings, workshop, etc. You have also put your all the energy to complete these lessons because it is pandemic time and we have faces many difficulties. Therefore we should not be careless. Be careful and do your best. Give whole energy to the reading. Study wholeheartedly all the things. If any doubts, then you may ask easily. I will be ever ready for you. Okay? Thanks. I will quit the class now.